ایک وقت تھا عراق صدام حسین کی سربراہی میں مڈل ایسٹ میں سب سے طاقتور ملک مانا جاتا تھا۔ کیا 1980 میں ایران عراق جنگ جس میں پہل صدام حسین نے کی وہ صدام حسین کی موت کی وجہ بنی؟ اور کیا واقعی صدام حسین صلاح الدین ایوبی بننا چاہتا تھا؟ دوستو، پاکستان کی لیفٹ سائڈ پر آپ میپ میں دیکھیں گے تو ایک بہت بڑا ملک عراق آپ کو نظر آئے گا۔ پاکستان سے تقریباً 2438 کلومیٹر دور 28 اپریل 1937 ٹکرٹ میں اوجا نامی گاؤں میں جو عراق میں موجود ہے، وہاں صدام حسین کی پیدائش ہوتی ہے۔ صدام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کینسر کی وجہ سے اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ صدام حسین کی ماں اپنے بچے کی پیدائش پر بہت خوش تھی، مگر حالات 2 وقت کی روٹی کھانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ خراب حالات کی وجہ سے صدام حسین کی ماں 2 سال بعد ہی اپنے بھائی خیر الطلفہ کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ آتی ہے، جو کہ اس وقت آرمی میں جاب کر رہے تھے۔ صدام حسین کی ماں دوسری شادی کر لیتی ہے۔ صدام حسین کافی پریشان تھا کیونکہ ابراہیم الحسن نامی سوتیلا باپ صدام حسین کو کافی ٹارچر کرتا، اسی لیے صدام حسین اپنی ماں تک کو ملنے نہیں آتا تھا۔ ماں کا پیار نہ ملنے کی وجہ سے صدام حسین بہت اڑیل اور ضدی بن چکا تھا۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی سوچ بھی بدل رہی تھی اور اس وقت کی مقبول پارٹی صدام حسین ڈھونڈ رہے تھے، وہاں ریلیشن بنانے میں بھی لگے تھے، کیونکہ صدام حسین جو سوچ رہا تھا اس وقت وہ کوئی بھی سنتا تو صرف ہنسنے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ 1957 20 سال کی عمر میں صدام حسین باتھ پارٹی میں اپنے علاقے لیول پر اچھی جان پہچان بنا چکے تھے۔ صدام حسین کے ماما ملٹری کے بارے میں اسے کافی نالج دیتے اور جتنا ہو سکتا اس کی تربیت بھی کرتے۔ صدام حسین کو اپنے ماما کی بیٹی پسند آتی ہے اور 1958 میں صدام حسین سائدہ خیر اللہ طلفہ سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ صدام حسین کے اس شادی سے تقریباً 5 بچے ہوتے ہیں۔ صدام حسین اب اپنا پورا دھیان اپنے گول اچیو کرنے پر دے رہا تھا۔ صدام کی ذہانت اور ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے 1966 میں آخر وہ وقت آ پہنچا جس کا انتظار صدام حسین کو تھا۔ باتھ پارٹی نے ریجنل کمانڈ کا ڈپٹی سیکرٹری صدام حسین کو بنا دیا۔ ڈپٹی سیکرٹری بنتے ہی صدام حسین نے کچھ غلط کام بھی پارٹی کے کہنے پر کیے، کیونکہ صدام حسین کی نظر بہت آگے تھی۔ پارٹی کے خلاف جانے والے لوگوں کو صدام حسین غدار مان کر انہیں سزائیں دیتا، جس سے پارٹی میں اس کی وفاداری اور مقبولیت بڑھتی اور کوئی شک بھی نہ کرتا۔ پورے عراق میں اس وقت سیول وار کی کنڈیشن بن چکی تھی۔ ایک طرف شیعہ سنی فسادات شروع تھے، وہیں دوسری طرف کرد عرب لوگوں سے لڑ رہے تھے، مطلب پورے ملک میں خانہ جنگی جیسا ماحول بنا ہوا تھا۔ صدام حسین اپنے ملک کے لیے بہت مخلص تھا، اس نے اپنی قابلیت کی بنا پر کافی حد تک پبلک کو کنٹرول بھی کر لیا۔ صدام حسین کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئے یونیسکو نے صدام حسین کو ایوارڈ سے بھی نواز دیا تھا۔ ہر طرف صدام حسین کے چرچے ہو رہے تھے۔ عوام میں اس وقت اگر کوئی مقبول لیڈر تھا تو وہ صرف صدام حسین ہی تھا۔ عراق کے پریزیڈنٹ احمد حسن البکر صدام حسین کی اس پاپولرٹی سے کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ جس کے پیچھے پبلک کھڑی ہو جاتی ہے وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، اور صدام حسین جو کرنا چاہتا تھا وہ اسے نظر بھی آ رہا تھا۔ چاہے صدام حسین نے بادشاہ بننے کا سگنل کسی کو نہ دیا ہو، مگر پریزیڈنٹ کو پتا چل چکا تھا کہ اب صدام حسین بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ احمد حسن البکر خود کی کرسی بچانے کے لیے سیریا سے بات چیت کرتا ہے۔ وہاں حافظ الاسد کی حکومت اس وقت تھی، جو بشار الاسد جو ابھی سیریا کا پریزیڈنٹ بھاگا ہے اس کے باپ تھے۔ صدام حسین اس موقع کو غنیمت جانتا ہے اور پبلک کو سب کچھ صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اگر میں پریزیڈنٹ بنا تو عراق مڈل ایسٹ میں سپر پاور بن کر ابھرے گا، اور پریزیڈنٹ دیکھیے اپنے انٹرنل معاملات میں دوسرے ملکوں کو انوالو کر رہا ہے۔ آخر وہ وقت آ پہنچتا ہے جس کا انتظار صدام حسین کو کئی سالوں سے تھا۔ 16 جولائی 1979 کو عراق کا نیا پریزیڈنٹ صدام حسین تھا اور عراق صدام حسین کی مٹھی میں تھا۔ ایک ہفتے بعد صدام حسین پبلک سے سپیچ کرتا ہے اور باتھ پارٹی میں جو لوگ صدام حسین کے خلاف تھے ان میں سے 68 لوگوں کو غدار بتا دیتا ہے۔ صدام حسین پارٹی سے انہیں نکال بھی دیتا ہے اور 22 لوگ جو ریزسٹ کر سکتے تھے انہیں صدام حسین مروا دیتا ہے۔ اگست 1979 تک صدام حسین کا راستہ عراق میں روکنے والا اور کوئی نہیں بچا تھا۔ صدام حسین جو پبلک کی نظر میں ہیرو تھا، اب پڑھے لکھے لوگ صدام حسین کی اس پالیسی سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ صدام حسین کو کافی سیکیورٹی تھریٹس بھی ملنے لگے تھے،
इसी वजह से सद्दाम हुसैन ने कड़ी सिक्योरिटी में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। खाना खाते वक्त शेफ का बेटा सद्दाम हुसैन के खाने को चेक करता, फिर सद्दाम हुसैन उस खाने को खाता। सद्दाम हुसैन अब कुछ बड़ा करने वाला था, इसीलिए उसने अपनी बॉडी डबल भी बनाने शुरू कर दिए थे ताकि असली सद्दाम हुसैन ढूंढने में वक्त लग सके। सद्दाम हुसैन जो सोच रहा था वो बहुत खतरनाक होने वाला था। दरअसल 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था। मोहम्मद रजा पहलवी जो अमेरिका और इसराइल का टाउट था, उसे अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी उस कुर्सी को संभाल लेते हैं। ईरान के इनकलाब से दूसरे मिडिल ईस्ट के मुल्क डर रहे थे कि कहीं अवाम यहाँ भी बादशाहों के सामने न खड़ी हो जाए। सद्दाम हुसैन को सऊदी अरब और कुवैत भड़काने लगे कि ईरान अब काफी कमजोर है और इराक का मुकाबला ईरान कभी नहीं कर पाएगा। सद्दाम हुसैन को ये लालच भी था कि 1975 में एक अलगेर एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से कुछ इलाका इराक का ईरान के कब्जे में चला गया था और सद्दाम हुसैन चाहता था कि वो किसी न किसी तरीके से इलाका मुझे मिल जाए, क्योंकि वहाँ ऑयल की भी काफी भारी मिकदार थी। अब यहाँ दूर बैठा अमेरिका सब कुछ नोट कर रहा था। 1980 के आते ही सद्दाम हुसैन 10,000 इराकी सोल्जर के साथ ईरान पर हमला करने की तैयारी कर लेता है। इराकी एयरफोर्स ईरान के कई एयर बेसेस पर हमला कर देती है। 10,000 इराकी फौजी बॉर्डर क्रॉस करके ईरान पहुँच जाते हैं। ईरानी एयरफोर्स चाहे कमजोर थी, मगर वो जवाबी वार करना शुरू कर देती है, जिसमें इराक का भी काफी नुकसान होता है। अब बारी है इंटरनेशनल ताकतों की एंट्री की। इसराइल मुसलमानों की लड़ाई से सबसे ज्यादा खुश था। वो छुपकर दोनों मुल्कों को सपोर्ट करना शुरू कर देता है ताकि जंग और बढ़े। सऊदी अरब और कुवैत खुलकर सद्दाम हुसैन को पैसा और सपोर्ट देते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के कहने पर ईरान का हर नौजवान बूढ़ा हथियार उठाकर इस जंग में कूद पड़ता है। सद्दाम हुसैन को लगता था कि इराक कुछ ही हफ्तों में ये जंग जीत जाएगा, मगर सद्दाम हुसैन और उसके इत्तेहादी बिल्कुल गलत थे। ये जंग 8 साल तक चलती है। सद्दाम हुसैन को ईरान की 1 इंच तक जमीन भी नहीं मिलती। इराक उल्टा कर्जे में फंस चुका था। सद्दाम हुसैन काफी डिप्रेस नजर आने लगे, क्योंकि इतना नुकसान कराने के बावजूद हाथ कुछ भी नहीं आया था। उल्टा नुकसान दोनों तरफ से हुआ, और वो भी मुसलमानों का। ईरान इसीलिए ये जंग नहीं हारा क्योंकि ईरान की फौज के साथ उसकी आवाम भी खड़ी थी और हर नौजवान सोल्जर बना हुआ था। अमेरिका सद्दाम हुसैन की खुलकर सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका की सपोर्ट और अरब मुल्कों का पैसा इराक को जंग नहीं जितवा पाया। इराक में भूख फैल रही थी। बेरोजगारी ने लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। सद्दाम हुसैन को पता था कि मुल्क की इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से पटड़ी पर लाना ही पड़ेगा। इराक कुवैत से बहुत सारा पैसा उधार में ले चुका था और कुवैत अपना पैसा वापस मांगना भी शुरू कर देता है। जंग की वजह से इराक की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि वो किसी को कुछ भी लुटा सके। सद्दाम हुसैन कुवैत से बातचीत करता है कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, पैसा मिल जाएगा, मगर कुवैत टाइम बिल्कुल नहीं देता। अब कुवैत ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए इराक के कुछ तेल के कुएं पर भी कब्जा कर लेता है ताकि इराक जल्दी जल्दी उसकी भारी रकम वापस दे दे। सद्दाम हुसैन पहले तो बहुत गुस्से में था। सद्दाम हुसैन आखिर तक बातचीत करना चाहता था, मगर बात नहीं बन पाई। आखिर सद्दाम हुसैन 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला कर देता है। कुछ लोगों का कहना था कि पैसों का सिर्फ बहाना था। सद्दाम हुसैन अक्सर कहता रहता था कि कुवैत इराक का इलाका है और इराक उसे एक दिन जरूर लेगा, और कुवैत के ऑयल रिजर्व जिस पर सद्दाम हुसैन की नजर थी वो भी इराक को मिल जाएंगे। वैसे भी पैसों के बदले में कोई भी जंग नहीं करता। आखिरकार सद्दाम हुसैन की क़यादत में 1 लाख सोल्जर और 300 टैंक कुवैत की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कुवैती आर्मी ज्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाती और हथियार डाल देती है। सद्दाम हुसैन कुवैत की रॉयल फैमिली को पकड़ना चाहता था। जैसे ही इराकी फौज रॉयल फैमिली तक पहुंचती, वो वहां से भाग चुके थे और सऊदी अरब में उन्होंने पनाह ले ली थी। मगर यहाँ इराकी फौज की मुजाहमत नजर आई। फहद अल अहमद कुछ फौजियों की मदद से लड़ाई करते हैं, मगर इराकी फौज इनको मौके पर ही मार देती है। सद्दाम हुसैन ने चंद ही घंटों में पूरे कुवैत को कंट्रोल में ले लिया था। अब यहाँ पर सबसे भरोसामंद आदमी चाहिए था। सद्दाम हुसैन अपने भाई अली हसन अल माजिद को कुवैत का गवर्नर बना देता है। सद्दाम हुसैन का ऐसे कुवैत पर कब्जा करना पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। अब बारी आती है अमेरिका की, जो सब कुछ चुपचाप देख रहा था। 6 अगस्त 1990 को यूएन में एक रेजोल्यूशन पास होती है जिसमें इराक के साथ ट्रेड को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अमेरिका की फौजें नेटो समेत सऊदी अरब में जमा होना शुरू हो जाती हैं। साथ में अरब मुल्कों की फौज भी अमेरिका के साथ खड़ी हो जाती है।
लग भग 34 मुल्क इकट्ठे होकर फौज जमा कर लेते हैं। सद्दाम हुसैन को अमेरिका वार्निंग देता है कि वो कुवैत से अपना कब्जा खत्म कर दे, मगर सद्दाम हुसैन उनकी बात नहीं मानता। आखिर 17 जनवरी 1951 को अमेरिका की फौज अपने इत्तेहादियों समेत इराक पर हमला कर देती है। इराक की एयर बेसेस और शहर खंडर बन जाते हैं। हर तरफ तबाही नजर आ रही थी। अफसोस की बात यह है कि इस हमले में मासूम बेगुनाह बेशुमार मुसलमान शहीद हो जाते हैं। अब सद्दाम हुसैन को समझ आ चुकी थी कि कुवैत पर हमला करना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। आखिर सद्दाम हुसैन कुवैत पर कब्जा छोड़ने पर राजी हो जाता है, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इराक से बड़ी बड़ी ताकतें मुंह फेर चुकी थी और अमेरिका ने तमाम एयर बेसेस भी इराक की तबाह कर दी थी, जिससे इराक आधे से ज्यादा तबाह हो चुका था। इन दो जंगों में 2 लाख से ज्यादा इराकी फौजी हलाक हो चुके थे। इराक में हालात बदतर से बदतर हो रहे थे। इराकी अवाम अब थक चुकी थी और बहुत सारी अवाम अब सद्दाम हुसैन को अच्छा नहीं समझ रही थी। ये मौका अमेरिका के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस मुल्क में अवाम हुक्मरान के खिलाफ हो जाए वो जंग कभी नहीं जीत सकता। अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश इराक पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा देता है और नेटो समेत इराक पर अमेरिका हमला कर देता है। इराक बिल्कुल भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत थी और ऊपर से उसके इत्तेहादी भी उसके साथ थे। इराकी अवाम भी अमेरिका का साथ देती है। सद्दाम हुसैन को अब अपनी जान बचानी थी, क्योंकि अमेरिका सद्दाम हुसैन को खत्म करने पर तुला था और अमेरिका का दूसरा था इराक के वसाइल पर हमेशा के लिए कब्जा करना। हजारों बेगुनाह शहरी यहाँ भी मारे जाते हैं। सद्दाम हुसैन जल्दी से अंडरग्राउंड हो जाते हैं और पूरा इराक जंग की आग में जल रहा था। यूएस आर्मी के सोल्जर जगह जगह सद्दाम हुसैन को ढूंढ रहे थे। अब यूएस आर्मी थक चुकी थी। उनको लगता था कि सद्दाम हुसैन इराक में नहीं है, वो इराक को छोड़ चुका है। एक अमेरिकी सोल्जर जाने लगा तो उसे अपने पैरों के नीचे एक ऐसा लगा जैसे कोई नीचे गड्ढा है। अब वो फर्श की तरफ देखने लगा और ऊपर से मट्टी साइड पर करता है। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था, क्योंकि नीचे एक सुरंग जा रही थी और नीचे देखते ही एक आदमी अपने हाथ ऊपर करके खड़ा था ताकि नीचे कोई ग्रेनेड सोल्जर ना फेंक दे, क्योंकि सुरंग में जाने से पहले ग्रेनेड फेंका जाता है। सद्दाम हुसैन हाथ ऊपर करके बाहर आ जाता है। उसकी हालत देख लीजिए क्या थी। यूएस आर्मी उसे अपने साथ ले आती है। कहाँ दुनिया का ताकतवर शख्स अब बेबस नजर आ रहा था। अगर इराक में सद्दाम हुसैन उस वक्त मकबूल होते तो इराकी अवाम कभी भी सद्दाम हुसैन को फांसी पर ना लटकने देती और अमेरिका भी जुर्रत ना करता। सद्दाम हुसैन ने बहुत अच्छे काम भी किए थे, वहीं बेगुनाह मुसलमानों के खून से भी कहीं न कहीं उसके हाथ रंगे हुए थे। आखिरकार सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलता है और सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 30 दिसंबर 2006 सद्दाम हुसैन का इस दुनिया में आखिरी दिन था। इस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। दुनिया के हर कोने में मुसलमान सोग मना रहे थे। वहीं इराक में कुछ लोग जश्न मना रहे थे और वहीं कुछ लोग सोग में डूबे हुए थे। और इराक के हालात अब आपके सामने हैं।